हाँ हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को. वी वर डिस्कसिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट और मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट to the eyes of different people, and we come to know that different people having different goals. We have also seen that with the example of construction of dam, what we got that construction of dam itself gives two different notions for different people. For example, for villages where the dam is going to be constructed, the villagers has to displace from their native places, and that gives a very negative impact to the minds of the villagers, as they have to leave that place where they have spent their lives, lives with their family members, where they have also spent their lives with their parents, their ancestors lives over there. They were having their jobs, they are having their business, they are having their farms, they are living together. So now they have to displace them. For them it is a kind of destruction. So for those people it is destruction, but with the dam, urban area is going to get some sorts of advantages, the facilities like water, electricity and many more. So for them it is development. So this is the meaning of different people having different notions regarding the development. Going further, just take one more example. Say there is a Ramesh. He is Mr. Ramesh. He is working in Delhi and having good salary. He is having his family, is having 2 children. Now Ramesh got an offer from a village to work over there, and he has been also offered more income. What? Ramesh was working in Delhi and getting good income, good salary, and he is having his family over there also. Now he got an opportunity offered from a village to work over there, means come to village and work in the village, stationed in village, and he has been also offered more income. What he is getting in Delhi, he has been offered more. Now the question is that, will Mr. Ramesh join the job? This is the question for you people also. Normally what we think, income leads prosperity, income leads more and more comfort. So over there, in this case, what will happen? In simple way, if we start thinking, Ramesh should join over there. If he will get more income, if he has been promised to get more income over there in the form of salary. But what do you think? How many of you think that Ramesh should join over there? Mr. Ramesh is in a state of dilemma. He is in a state of confusion. Will you help? आप इसकी मदद कैसे कर सकते? क्या राय देंगे आप? सपोज करो अगर आप रमेश हो तो आप क्या करोगे? नॉर्मली इन जनरल से हम कहेंगे आंख बंद करके उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं भी पैसा अधिक मिलेगा, हम काम कर लेंगे. बट रमेश, बिफोर डिसाइडिंग टू ज्वाइन, रमेश हैज टू थिंक अ लॉट. इसीलिए रमेश ने यहाँ पे ये सोचना शुरू किया, शैल आई ज्वाइन? अगर केवल इनकम की बात होती, सैलरी की बात होती, तो ये बंदा रमेश तुरंत अपनी बोरिया बिस्तर बांधता, फैमिली लेता, चला आता यहाँ. बट नाउ रमेश इज थिंकिंग वेदर इन दैट विलेज will he get the good health facilities for his family and himself. Now Ramesh is thinking, will he could provide good education to his children at that place. गांव की समस्या है, गांव की बात है. क्या वहां अच्छे स्कूल मिलेंगे? क्या अच्छी व्यवस्था होंगी? क्या अच्छी सुविधाएं होंगी? क्या वहां पे अपॉर्चुनिटीज, इन केस रमेश को वो काम सूट नहीं करता है,
Will Ramesh got more and more opportunities over there? क्या रमेश के व्यक्तिगत विकास की वहां संभावनाएं हैं? रमेश फिर क्या करेगा? रमेश इन चीजों को सोचेगा, भले ही इनकम अधिक हो, वो इस चीज को कंसीडर करेगा, क्या वहां जाने पर उसकी जो बाकी जरूरतें हैं क्या वो पूरी हो पाएगी? क्या वो संसाधन बेहतर है? क्या वो गांव सड़कों से जुड़ी हुई है? क्या आसानी से वो शहर तक पहुंच जाए बाकी जरूरतों के लिए? क्या वहां पे बाकी सुविधाएं, सड़कें अच्छी हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के अलावा क्या स्कूल है, हेल्थ फैसिलिटीज है? इन सब चीजों को सोचता है और सोचने के बाद जनरली अगर एक टिपिकल इंडियन विलेज की बात करें, उसको सोच करके रमेश दुविधा में है और अंत में रमेश क्या डिसाइड करता है कि रमेश विल नॉट ज्वाइन। क्यों? बिकॉज रमेश विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स। एक और चीज यहां पे रमेश कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा सेटिस्फैक्शन। अगर वो अपने परिवार को देखेगा कि सारी सुविधाएं उसे मिल पा रही है तो ही विल सेटिस्फाइड, ही विल फील हैप्पी, कि उसे संतोष होगा कि उसके बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ पा रहे हैं और उनके भविष्य उज्जवल बन सकते हैं। लेकिन यहां वो नहीं करेगा। मीन्स यहां दो चीज देखिए, पैसा है लेकिन पैसे से सारी सुविधाएं नहीं आ सकती। उसी प्रकार से अगर एक इस रमेश बंदे को अधिक पैसा मिलता और किसी पॉल्यूटेड सिटी में जाने का मौका मिलता तो क्या ये जाता? फिर ये प्रश्न आता कि क्या करना है। तो यहां पे ध्यान देंगे, हमारे जीवन में कुछ चीजों का महत्व क्या है। We all are having two different things, materialistic and non-materialistic. Materialistic things which we can obtain, we can touch, we can purchase, we can exchange, that is called materialistic things. जैसे कोई वस्तु लेते हैं, जैसा पैसा है, उसके बदले प्राप्त कोई भी वस्तु है, वो materialistic thing है। Non-materialistic thing is also quite important. और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में वो बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं पीस की, रमेश को अब जिस दिल्ली में है तो दिल्ली में वो अपने माता पिता के साथ है, तो ही इज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स। ये खुशी है, ये उसकी फर्ज है, तो वो उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो गांव जाएगा तो अपने माता पिता को नहीं ला सकता, क्योंकि माता पिता गांव में बीमार पड़ेंगे तो अच्छी सुविधा नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे लव, पैशन, पीस, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, अब पानी की व्यवस्था क्या गांव में है या नहीं है, अब ये भी सोचना पड़ेगा। ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। क्या गांव में ऐसी इन्वायरमेंट है जहां पे जेंडर इक्वलिटी हो, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाए? क्योंकि रमेश की पत्नी एक वर्किंग लेडी है, हिज वाइफ विश टू वर्क आउटसाइड द होम। क्या गांव वाले ये अलाउ करेंगे? तो a number of questions are there, means कि different people having different notions regarding the development. एक इंडिविजुअल अलग अलग परिस्थिति में अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट के डिफरेंट आयाम्स के ऊपर बात करता है। अब हम आगे दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल, और what is the meaning of development for nation? Before that, we have to see one more important thing. People look at a mixed goals. This is important thing, and that is the core of this meaning of development for individual. So what we have seen in two examples, construction of dam, for some people it is for development, for some people it is destruction. And we have also seen the example of Ramesh. For Ramesh, money was there, but with the money, Ramesh was looking for more and more facilities. So we have discussed material thing, that is money, and other things that can be purchased with the help of money, and not material, non-material things such like education, health, clean environment, water supply, equal treatment, security, peace. These all are the things of non-material things. These are also important in case of development. So what I have written, besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect, good health and educational facilities.
Due to that, if you remember, Ramesh has been offered more and more income to work for working in a village, but Ramesh denied to work. Why? Because Ramesh is also looking for these non-material things. So what we can conclude? We can conclude that people is not working for the sake of money. Beside money, people also looking for more other things. These are those things, and without these things, people cannot get that notion of development. This is called value. If you remember, when I am talking about growth plus value, means if we are having earning capacity, that earning capacity must be transformed in increasing the standard of life, and these all are the attributes of those better living conditions. So these are the things that we require. So now next, after this, we are able to understand the meaning of development through the eyes of an individual. Now in that particular context, we are going to see what does mean for development at the nation level. Very much similar. At the nation level, development also having contradictory in terms of their notion. For example, constructing dam. Constructing dam lead to the development of urban areas, but destruction for the villagers, those who are living in those areas. In that scenario, what government should take? What government should do? In what way government decide what government should do? इस परिस्थिति में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट क्या करेगी फॉर द सेक ऑफ नेशनल डेवलपमेंट? ये नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि किस पॉलिसी से, किस प्रोग्राम से अधिक लोगों का लाभ हो, यानी कम से कम सेक्रीफाइस और मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिल सके, ये करना पड़ता है। यहां भी सरकार की आलोचनाएं होती हैं, लोग सहमति और असहमति दिखाते हैं। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, डैम का एक एग्जांपल है। आपको अगर याद होगा कि सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे बनने की बात आई, काफी विरोध हुआ, डैम बनी, बीच का रास्ता भी निकला, डैम की ऊंचाई कम कर दी गई ताकि कम से कम लोग विस्थापित हो, और विद द intervention of the Supreme Court of India, government has been directed to give the facilities to the people, those who have been displaced, means rehabilitation of those people must be done in proper way. So एक वो तरीका होगा, डैम भी बना, बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि ग्रेटर इंटरेस्ट में, समाज के ग्रेटर इंटरेस्ट में, सोसाइटी के ग्रेटर इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट इज empowered to take such decisions. जैसे एक एग्जांपल, nowadays we are living in a lockdown period. देखिए, ये लॉकडाउन सरकार के लेवल पे लिया गया निर्णय है, लेकिन इस लॉकडाउन से क्या है, आर्थिक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लोगों की आमदनी घट रही है, लोगों के पास जो आमतौर पे जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी सबसे बुरी स्थिति है। ये गवर्नमेंट की विल नहीं है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, ये डिसीजन लेना पड़ा। अब इसकी आलोचना होगी कि हम भूखे मर रहे हैं, सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, बट फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन। कई बार क्या होता है कि कई इलाकों में पॉल्यूशन खूब बढ़ने लगते हैं इंडस्ट्री के कारण, जैसे आगरा के इलाकों में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इंटरवेन किया, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी इंटरवेन किया और कहा कि उस इलाके की इंडस्ट्रीज वगैरह को बंद कर देना है। तो इंडस्ट्रीज को बंद करने की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्यों, ग्रेटर इंटरेस्ट में क्या करना है, इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, इन्वायरमेंट को हमें साफ सुथरा रखना है ताकि लोगों की अधिक से अधिक सुविधाएं हो सके, लोग बेहतर इन्वायरमेंट में जी सके। तो यहां ये ध्यान देने की जरूरत है कि नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट के मायने ग्रेटर इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। उसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम वहां पे किसी एक सिनारियो को देखें ओवरऑल एस्पेक्ट में। तो नेशनल डेवलपमेंट, we always remember that government should take the decision in greater interest of the society. ये है हमारा नेशन डेवलपमेंट। तो हम दो एस्पेक्ट को पढ़ पाए, एक डेवलपमेंट का इंडिविजुअल मीनिंग और एक डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। तो नेशन के रूप में डेवलपमेंट का क्या होता है, अब हमको पढ़ना है कि कैसे, जब हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि अलग अलग सिनारियों में इसके मीनिंग अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार से अब
डिफरेंट कंट्रीज के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे, जब ये कंट्राडिक्शन डेवलपमेंट के नोशन को लेकर के इंडिविजुअल लेवल पे भी है, नेशन लेवल पे भी है, तो कैसे अलग अलग देशों को हम कंपेयर करते हैं, कैसे कुछ देशों को हम डेवलप कहते हैं, अंडर डेवलप कहते हैं, किसी को रिच कंट्री कहते हैं, किसी को पुअर कंट्री कहते हैं, किस आधार पे, व्हाट आर द क्राइटेरियंस ऑन विच वी कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप कंट्री है। ये क्या मतलब है? इसकी जड़, इसकी बुनियाद, इसके जो मूल है वो इसी नोशन ऑफ डेवलपमेंट में। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियंस है, एक ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो डेवलपमेंट को निर्धारित करती हैं और उसी के आधार पे हम डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ different countries are compared or different states are compared on the level of. Now students, we are going to discuss one more important topic, that is how to compare different countries or states. हमने अभी जस्ट बात की थी कि कैसे कुछ देशों को डेवलप कहा जाता है, कुछ को अंडर डेवलप कहा जाता है। ये क्या है, कैसे कहा जाता है, कौन सा पैमाना है, कौन सा मीटर है, कौन सा मेजरमेंट एरिया है, किस तरीके से हम करते हैं। Comparing with two things is a very tough task, because things are there. If we are going to compare two different things, there must be some sorts of common attributes. But what we have seen that in terms of development, there are two dimensions, similarities and dissimilarities. So over here what I have written, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? इसी प्रश्न का जवाब हम ढूंढते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक क्लास की बात करें, जैसे आपके क्लास में आपके क्लास के स्टूडेंट्स को हम क्लासिफाई करना चाहें तो किस आधार पे कंपेयर करें, किस आधार पे उनको अलग कर सकते हैं? कुछ तो आधार होगा, कुछ तो पैमाना होगा। हो सकता है हम ये एक सोच सकते हैं एट्रीब्यूट कि आपके क्लास के बच्चों को जो सबसे टॉल है उसके आधार पे हम करें, उस प्रकार से कंपेयर कि उस बंदे के तुलना में बाकी बच्चे कितने छोटे हैं, कितने लंबे हैं। हो सकता है शॉर्टनेस पे करें, इंटेलिजेंट लेवल पे करें, एवरेज है बच्चे, स्टूडियस है, किसी भी आधार पे कर सकते हैं। तो while doing comparison we have to choose some sorts of attributes that must be present in everywhere. कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होनी चाहिए जिसके आधार पे हम कंपेयर कर सके। तो इस नाते जब हम कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उनकी इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं, और इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो एक आधार मानी गई है वो मानी गई है इनकम। लेकिन इनकम किसकी इनकम और किस टर्म में इनकम, और ये इनकम का जो बेसिस है, उसका जो पैमाना है वो क्या होगा, किसने दिया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, इन सब चीजों पे अभी हमें बात करनी है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि कैसे इनकम के आधार पे हम कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं। तो अब इसमें इनकम के क्रम में जो डिफरेंट डायमेंशंस हम देखेंगे वो होगा आपका दो। एक है आपका जो कहते हैं नेशनल इनकम। बच्चों क्या आपको नेशनल इनकम के विषय में पता है? नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेशनल इनकम की बात अगर करें तो देश के अंदर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग, पीपल लिविंग इन अ कंट्री, उनके इनकम का सम ऑफ देयर इनकम, ये कहलाता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यानी मॉनेटरी फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा जब हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं मनी के फॉर्म में, ये मनी के रूप में हम इनकम को देख रहे हैं और वहां पे कंपेयर करते। मींस वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव टेकन टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज इनकम। मींस फर्स्ट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मतलब पीपल लिविंग इन अ कंट्री, उनका जो टोटल इनकम है, अगर उन सबके इनकम को जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है उनका
सम यानी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के आधार पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। यहां एक चीज देखने वाली बात है, अगर हम कंपेयर करें नेशनल इनकम के आधार पे, तो क्या ये सही पैमाना है, क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? गौर कीजिए। मान लेते हैं हम कि एक कंट्री ए है, इस कंट्री की जो इनकम है सपोज ये ₹10,000 है, और एक कंट्री बी है, अब इसकी जो इनकम है 15,000 है नेशनल इनकम। तो ऑन सीइंग दीज टू स्टैटिस्टिक्स, टू नंबर्स, यूजुअली व्हाट यू विल से कि बी की इनकम ज्यादा है बी कंट्री की, इसका मतलब कि बी ज्यादा डेवलप होगा। बट स्टिल देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर। क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि लोगों की स्थिति वहां पे बी में जो लोग हैं उन सबकी स्थिति अच्छी होगी? क्या इसका उनको लाभ मिल रहा होगा? मेरे कहने का आशय आप समझना चाहते हैं तो समझे। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे कि इफ सपोज कि अब इसको कंपेयर करते हैं इसकी पॉपुलेशन से। सपोज कि ए में, ए की टोटल पॉपुलेशन 100 है, यहां पे 100 पीपल रहते हैं, जबकि बी की पॉपुलेशन आप 1500 है, यहां 1500 पीपल है। तो गौर कीजिए क्या हो रहा है यहां पे। तो यहां पे दोनों में देखेंगे, अगर हम एवरेज इनकम निकालें यानी पीसीआई, सो कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई का आशय होता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल पॉपुलेशन। हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पे टोटल इनकम है और टोटल पॉपुलेशन है, तो कैसे निकालना चाहिए इसको? तो हमें निकालना होगा कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अब हम इसको कंपेयर करके देखें तो टोटल इनकम हम क्या देख रहे हैं? 10,000। इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1000। यानी वहां पे लोगों की इनकम, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट विल गेट? 100। यानी लोगों की इनकम कितनी है? तो 100 रुपए। बी को भी देखें 150 पीपल है, लेकिन यहां भी इनकम 100 है, एवरेज इनकम पीसीआई 100 है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि अगर यहां पे इस बी की पॉपुलेशन अगर 200 है, तो यहां पे पीसीआई क्या होगा? तो इसके लिए पीसीआई को अगर 200 से डिवाइड करके हम देखें तो क्या मिलेगा आपको? आप देख सकते हैं कितनी हो गई? 75 ओनली। अब बताइए, भले ही इनकम, ओवरऑल इनकम बी की अधिक है, बट व्हाट शेयर पीपल आर गेटिंग इंडिविजुअली? ओनली 75। मींस only on seeing the national income we cannot recommend, we cannot say that this country is more developed. Over there we have to consider the PCI, per capita income. कहने का आशय यह है कि हमें नेशनल इनकम के अलावे जो सबसे गहरी बात देखनी है कंपेयर करने में, वो है हमारा पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम कंट्री के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को कैलकुलेट करेंगे। और आपको यह भी याद रखना है बच्चों कि ये पीसीआई का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड बैंक का। किसका? तो वर्ल्ड बैंक का। ये विश्व बैंक है, उसने ये क्राइटेरियन सेट किया है। वो दुनिया की इकोनॉमीज को वो पीसीआई के आधार पे कंपेयर करती है। तो पीसीआई के आधार पे जिस देश की पीसीआई अधिक होती है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, वो कंट्री डेवलप मानी जाती है। जिस कंट्री की पीसीआई कम होगी कंपैरेटिवली, तो उसको अंडर डेवलप या लेस डेवलप कंट्री कहते हैं। तो यहां भी उसने एक क्राइटेरिया, एक लेवल फिक्स कर रखा है कि इतनी इनकम के बाद अगर किसी देश की कंट्री की इनकम इतना है या उससे अधिक है तो वो डेवलप कंट्री कहलाएगी, और उससे कम है तो वो अंडर डेवलप कहलाएगी। तो अब हम उस चीज को पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वी हैव सीन दैट पीसीआई, एवरेज इनकम, हैज बीन accepted as an attribute
to compare different economies, different countries on the basis of their economies. So over here we have to remember few data. In 2006 World Bank had suggested and given that the countries with PCI rupees 4,53,000 per annum and above are called rich countries. यानी जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 4,53,000 यानी 4,53,000 पर एनम यानी कि एक साल वार्षिक और उससे अधिक होगी वो रिच कंट्रीज कहलाएंगे, और कंट्रीज विथ पीसीआई रुपीज 37,000 और लेस कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और यहीं से इंटरेस्टिंग बात, इन दोनों के बीच की इनकम वाली कंट्रीज क्या कहलाती हैं? डेवलपिंग कहलाती हैं, जो इसके मध्य में होती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक चीज और यहां पे आप ध्यान देंगे, दिस पीसीआई इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन लिमिटेशंस। पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम क्या एक कंप्लीट पैमाना है? वेदर इट इज अ रियल way to measure level of development? Absolutely not. Why? आपने देखा रमेश के केस में आमदनी अधिक हो रही है लेकिन उसने कई चीजों को कंसीडर किया, a number of non material things that is also very much important while accepting the notion of development. अब इस चीज को हम लोग देखेंगे कि कहां पे एवरेज इनकम की लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे कि ये एवरेज इनकम की लिमिटेशंस किस रूप में हमें दिखती है, लिमिट क्या है। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, गौर करेंगे आप कि इसकी लिमिटेशंस किस रूप में हम देखते हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम किसी देश के पास बहुत अधिक है, यानी कि आपने देखा कि दो कंट्रीज की हमने तुलना की, एक कंट्रीज के पास इनकम पर कैपिटा इनकम 100 थी, एक के पास 75। लेकिन यदि जिस कंट्री के पास 100 पर कैपिटा इनकम है परंतु वहां पे बाकी सुविधाओं का अभाव होगा, तो वहां पे डेवलपमेंट का रियल मीनिंग नहीं आ पाएगा। जैसे यूएई मरुभूमि, तेल से रिच, इनकम बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन मरुभूमि है, पानी का अभाव, जंगलों का अभाव, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, काफी हॉट डेजर्ट्स हैं। तो उस प्रकार के वातावरण में क्या हम रहना पसंद करते हैं? क्या बाहर से लोग जाकर के वहां केवल इनकम की लालसा में कितने लोग जाना चाहेंगे? तो पर कैपिटा इनकम हाइड्स अ नंबर ऑफ डिस्पैरिटीज, लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप केरला को जानते हैं। केरला और पंजाब और बिहार, इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से देखें तो केरला इज हैविंग लेस पर कैपिटा इनकम देन दी पंजाब, बिहार इज लेस पर कैपिटा इनकम देन पंजाब एंड केरला। ये डाटा आपकी किताब में दे रखी है। इफ यू सी योर बुक यू विल गेट दीज थिंग्स, बट जनरली आई एम टॉकिंग इन जनरल about the drawbacks of per capita income. Why per capita income is not considered as the best way to measure development. These are the different aspects of development or more attributes. तो आप देखेंगे कि केरला की लिटरेसी रेट हाइयर है, हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर है। अब क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है, लेकिन पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज कंपैरेटिवली केरला कम है, एजुकेशन लिटरेसी लेवल इन कंपैरिजन टू केरला कम है। तो इससे क्या मिला, भले ही पंजाब की पर कैपिटा इनकम अधिक है, केरला की उससे कम है, बट केरला इज रिगार्डेड मोर डेवलप्ड देन दी पंजाब। अब रही बात बिहार की, तो यहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, इसके अलावा इनकम भी कम है, हेल्थ फैसिलिटीज भी पुअर है। हेल्थ फैसिलिटीज पुअर होगी तो आपका क्या आएगा, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहां पे अधिक होगी। तो देखिए ये जो शब्द मैंने कहे, जो मैंने कहा हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात,
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात, यानी कितने लंबी अवधि तक लोग जीते हैं, ये सभी वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारी डेवलपमेंट के वो विभिन्न आयाम हैं, तभी जाकर के डेवलपमेंट की रियल कंसेप्ट आती है। केवल पर कैपिटा इनकम से ये चीजें मेजर नहीं कर सकते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन मोर